The next topic in forced vibration is forced vibration due to excitation of support. Now, in this, what we are going to do is look at this figure. Till now, we have seen how if excitation is given to mass, there is something wrong with the software. It is not streaming well. Anyway, let us forget about this. I'll show it here. Till now, what we have been doing is we looked at the system like this: spring, damper, and mass. And excitation was given to the mass. We are talking about forced vibrations. So the forced excitation or harmonic excitation was F naught sine omega t. Okay. This same system can be drawn in an inverted position. I can draw the same system like this. The support is at the bottom. The spring is here. The damper is here. And the mass is here. Once again, I can give excitation to the mass by shaking it up and down with a sinusoidal forcing function F naught sine omega t. Actually, this was the situation of our rotating imbalance. If you remember the diagram of your rotating imbalance, instead of a mass here, you had a complete system like this. The spring was at the bottom, the damper was at the bottom. And this thing, with the hatched line that we are drawing, is the support. So support was supposed to be like a stable thing. It was not moving. It was rigid. And obviously there was rotation in the rotating parts and all. There was an imbalance mass m naught at a radius of eccentricity e. So this was the case. Now, in this particular topic, what we are going to discuss is the mass is static. That means there is nothing moving in the mass and all. Let us say it's a lump of mass, but you are exciting the support. Now, just imagine what happens if the ground is shaking like this up and down, and you are interested in understanding how will the vibrations of the ground be transmitted to the mass. Now we are looking at forced vibration from the reverse perspective. अभी तक अपन क्या कर रहे थे? अभी तक अपन देख रहे थे कि भाई ग्राउंड को तो अपन ने छेड़ा नहीं था. जितना भी फोर्स्ड वाइब्रेशन में अपन ने अभी तक पढ़ाई की है, द ग्राउंड वाज फिक्स्ड. ठीक है? And whatever disturbance or vibration or forcing function, whatever you were imagining or you were considering it to be applicable on the mass. तो आप ये देख रहे थे कि मास पे अगर फोर्सिंग फंक्शन लगे तो मास का कितना एम्पलीट्यूड बनेगा, ये देख रहे थे. ग्राउंड की तो बात कर ही नहीं रहे थे कि ग्राउंड की बात करने की जरूरत ही नहीं, फिक्स है वो तो. ठीक है. अब अपन उल्टा देख रहे हैं. अब अपन ये देख रहे हैं कि अगर मैं ये सपोर्ट या ग्राउंड जो अपन बोल रहे हैं, अगर मैं सपोर्ट को ही हिलाना चालू कर दूं तो मास के ऊपर कैसा फर्क पड़ेगा. देन व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ मास. ठीक है. But before starting with the mathematics of this thing, being engineers, we must first question कि भाई ये जो आप हमें पढ़ाने जा रहे हो, ये हमें ये बताओ रियल लाइफ में कहाँ दिखेगी हमें.
मतलब ऐसा कोई सिस्टम है क्या जिसमें जमीन ही उछाल रहे हो आप? ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, या ऐसी हवा में बातें कर रहे हो, कुछ भी गणित बना रहे हैं अपन? तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली आपके रियल लाइफ में आपको कहाँ मिलेगी। एक मिनट मेरे को यहाँ चेक करने दो वेदर आर इंटरफेस इज वर्किंग और नॉट, लेट मी चेक। ठीक है, आई गेस द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ दिस थिंग is every automobile you see on the road। ये गाड़ी का एक पहिया है, पहियों के ऊपर आपका गाड़ी का चेसिस वगैरह होता है, सस्पेंशन वगैरह होता है, which has got some elasticity and all। So I am representing a spring and a damper here, and then I am putting the mass over it। ऐसे चला गया ये। Wheel, the wheel supports the chassis and suspension of your automobile, which has got elasticity and damping। So we draw a spring and a damper, and above it the entire mass of the passengers and the vehicle itself sits। तो ये जो अभी मैंने फिगर बनाया है, एक मास, स्प्रिंग और डैम्पर का, ये बेसिकली आपकी हर गाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। आपकी बाइक, आपकी कार, ट्रक, ट्रॉली, जितनी भी दुनिया भर में सारी गाड़ियां पहियों पे चल रही है रोड पे, दिस सिंपल फिगर इलस्ट्रेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर ऑफ एवरी ऑटोमोबाइल। ठीक है, अपन वाइब्रेशन ऑफ सपोर्ट की बात कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, if I give a harmonic excitation to the support, in other words to the ground, how would such forced vibrations affect the mass? यानी mass का motion कैसा होगा? ठीक है, now you see the road on which your automobile moves is not always straight। ठीक है, अगर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन अगर आपने रोड को मान लिया, तब तो आपका पहिया बस सीधे आगे को चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कहीं पे भी कोई उछाल नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। बट नाउ इमेजिन दैट द रोड इज नॉट स्ट्रेट। अब आपकी रोड जो है उसमें कुछ ऐसे ऐसे ऊबड़ खाबड़ उतार चढ़ाव है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? नाउ व्हेन योर व्हील इज रोटेटिंग एंड इट इज ट्रैवलिंग ओवर ऑल दीज रफ टेरेन्स, तो आपका जो व्हील का जो सेंटर है, ये ऐसे ऊपर नीचे झटके खाएगा। ये झटके खाएगा तो आपके ऑटोमोबाइल का सस्पेंशन भी झटके खाएगा। सस्पेंशन झटके खाएगा तो अंदर बैठे पैसेंजर्स और कार या बाइक की जो बॉडी है वो खुद भी झटके खाएगी। तो दिस is an illustrative example of a real life scenario of excitation of support। तो आपका सपोर्ट क्या हो गया इस पूरे केस में? इस वाले एग्जांपल में आपका सपोर्ट जो है वो व्हील है। योर व्हील ऑफ द ऑटोमोबाइल इज द सपोर्ट एंड एवरीथिंग अबव इट इज द सिस्टम। ठीक है, तो अब अपन ये फिगर देख रहे हैं अपने पास में जो मैंने आपको बना के दिया है। I have drawn the support as a simple plate-like structure, but for all practical purposes, being engineering students, you should now remember कि इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें सपोर्ट को आप मोशन दे रहे हो, वो कौन से एग्जाम्पल्स हैं? वो सभी गाड़ियों के पहिए जो है, बेसिकली वो सपोर्ट वो पहिए ही है, और पहिए के ऊपर जितना भी पैराफर्नेलिया गाड़ी का रखा हुआ है वो सब कुछ ये है। So now basically what we are studying is, if your vehicle is going through a rough patch of the road और रोड के कारण पहिए अगर ऊपर नीचे, यानी कि आपका सपोर्ट खुद अगर ऊपर नीचे ऑसिलेट करे,
तो उसके ऊपर सपोर्टेड मास पे ये ऑसिलेशंस क्या एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करेंगे, किस तरह का ऑसिलेशन मास तक पहुंचेगा, हाउ वुड द वाइब्रेशंस ऑफ द सपोर्ट अफेक्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द मास, ये समझ रहे हैं अपन आपकी बात, ठीक है। तो once again what we are going to do is we are going to take an instantaneous position, we are going to develop the differential equations, we are going to come up with a final solution, और उसके बाद हम ये पता करने में इंटरेस्टेड हैं कि मास का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये कितना ऊपर नीचे मास उछल रहा है मेरा, बिकॉज इवेंचुअली वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और अगर आप देखें तो आपकी पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक 50% ऑफ अटेंशन इस प्रॉब्लम के ऊपर सब पूरा आधारित है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स वांट टू कम अप विद सॉल्यूशंस ऑफ मिनिमाइजिंग द डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर्स सिटिंग इनसाइड द व्हीकल्स। तो वो चाहते हैं कि भाई गाड़ी में नीचे पहियों पे तो झटके आएंगे ही आएंगे, हर जगह पे रोडें खराब होती है, सारी रोडें बिल्कुल हाईवे जैसे स्मूथ रोड्स तो होती नहीं है, तो जब झटके आएंगे तो किस तरीके से अपन ये सस्पेंशन डिजाइन करें, यानी कि ये के और सी का डिजाइन कैसा हो कि मास पे पहुंचने वाला एम्पलीट्यूड एक्स नॉट ये कम से कम हो। तो you want to minimize the transmissibility of vibrations from the support to the mass. This is the purpose of our engineering here. तो उसके लिए अभी अपन गणित बना रहे हैं। So let us see how we proceed with that. ठीक है? Now you see, when you shake the support, your mass is also going to shake. ठीक है? और इन दोनों का जो मोशन होगा ये बिल्कुल एक जैसा तो नहीं होगा। Now, for instance, let us say कि मेरे पास एक सपोर्ट है जो कि शेक मैं कर सकता हूं, आई एम हैविंग द फ्रीडम ऑफ शेकिंग द सपोर्ट, ठीक है। और इस सपोर्ट के साथ में रिजिडली मैंने कोई दूसरा मास कनेक्ट कर रखा है, रिजिड कनेक्शन, नो स्प्रिंग नो डैम्पर। तो उस केस में तो ये मास और सपोर्ट एक ही चीज हो गए। तो अगर मैं वाई डिस्प्लेसमेंट सपोर्ट को दे रहा हूं तो वाई डिस्प्लेसमेंट मास को भी मिलेगा, वाई डॉट वेलोसिटी अगर सपोर्ट को दे रहा हूं तो वाई डॉट वेलोसिटी मास को भी मिलेगी, बिकॉज दे आर रिजिडली कनेक्टेड। तो मास के पास में कोई चारा ही नहीं है, जो मोशन सपोर्ट का है वही मोशन मास का भी होगा। बट when the rigid supports are eliminated and instead you place a spring and a damper which provide relative motion, तो उस केस में आपके सपोर्ट का जो मोशन होगा उसकी मिमिक्री नहीं करेगा मास। ये आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, आई डोंट हैव एनिमेशंस एंड ऑल टू शो यू, बट यू कैन इमेजिन कि अगर इस तरह के रिलेटिव मोशन को अलाउ करने वाले कंपोनेंट्स हैं दोनों, स्प्रिंग और डैम्पर, ये रिजिड सपोर्ट्स नहीं है ये। तो अगर मैं सपोर्ट को शेक करता हूं तो मास भी शेक तो होगा, लेकिन मास का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी सपोर्ट के डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी से एग्जैक्टली मैच नहीं खाएगा, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, since I know that the displacement of and velocity of the support and mass will be there, but they won't be the same. So I am representing the displacement, instantaneous displacement of the support with y variable, and therefore the instantaneous velocity of the support with y dot, and the instantaneous displacement of mass with x variable, and the instantaneous velocity of the mass with x dot। ठीक है, तो अपने पास में चार वेरिएबल आ गए हैं, y, y डॉट, x, x डॉट। x पैरामीटर मास के डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है और y पैरामीटर सपोर्ट के डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और एक और चीज आपको मैं समझा दूं, अच्छा इंस्टेड में आपसे ये पूछना चाहूंगा x और y में से इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, एनीबॉडी? सर y इनपुट है और x आउटपुट है। एक्सेलेंट। पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सपोर्ट पे वाइब्रेशन दिया जा रहा है और पता कर रहे हैं कि मास का वाइब्रेशन कैसा होगा। तो आप प्रोवाइड क्या करा रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग द वाइब्रेशन बाय on the support and you want to find out what will be the nature of this x and x dot।
ये पता करना चाहते हो। तो ये तो हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चार पैरामीटर्स अपन ने डिस्क्राइब कर दिए। नाउ कंसिडरिंग एब्सोल्यूट मोशन ऑफ मास। एब्सोल्यूट मोशन ऑफ मास का मतलब गाड़ी चल रही है, ये आपका पहिया है, ये आपका सपोर्ट हो गया, इसके ऊपर मास, स्प्रिंग मास डैम्पर बना दिया, और ये गाड़ी है और गाड़ी के पैसेंजर, या आप बैठे हुए इसके अंदर गाड़ी के अंदर, ड्राइविंग, एंड दिस इज मूविंग स्ट्रेट अहेड, द रोड इज लाइक दिस। ठीक है, एब्सोल्यूट मोशन ऑफ मास को कंसिडर करने का मतलब है पैसेंजर और गाड़ी चल रही है और आप रोड के किनारे में खड़े होकर के इसको देख रहे हो। यू आर लुकिंग एट द व्हीकल मूविंग ऑन द रोड, यू आर अ थर्ड पर्सन, योर फ्रेंड इज ड्राइविंग। ठीक है, एब्सोल्यूट मोशन ऑफ मास का मतलब है आपके फ्रेंड का जो वाइब्रेशन आप देख पाओगे कि भाई आपका फ्रेंड गाड़ी चला रहा है, धचके खा रहा है और गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उचक रहा है। किसके कारण? क्योंकि रोड ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो आपको क्या इसका मोशन दिखेगा, वो एब्सोल्यूट मोशन कहलाता है। और हमारी स्टडीज के दौरान एक बार अपन एब्सोल्यूट मोशन का जब स्टडी कर लेंगे, वी विल इवेंचुअली कम डाउन टू द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन, कंसिडरिंग रिलेटिव मोशन ऑफ मास। रिलेटिव मोशन ऑफ मास का मतलब है अब आप इस पूरे सिनारियो में आप बन जाओगे ड्राइवर। एब्सोल्यूट मोशन का मतलब है हाउ विल द वाइब्रेशन ऑफ द मास लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द सिस्टम। रिलेटिव मोशन ऑफ मास का मतलब है हाउ विल द मोशन ऑफ द मास फील फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन सिटिंग इनसाइड द सिस्टम। तो जब मैं रिलेटिव मोशन ऑफ मास की बात करूंगा तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं एक तरह से कि अगर मेरा ये पहिया फिक्स होता तो मुझे क्या फील होता। यानी कि आप जब गाड़ी के अंदर बैठोगे तो आप एक तरह से इस तरह से ये फील कर रहे हो कि आप इधर आके खड़े हो गए हो, एक तरह से यहां इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए। तो जितना पहिया ऊपर नीचे होगा उतना ही आप भी ऊपर नीचे होगे। तो एक तरह से पहिए का मोशन आपके लिए खत्म हो गया, क्योंकि पहिए के साथ साथ आप ऊपर नीचे जा रहे हो। सो एवरी टाइम यू लुक एट द व्हील you will simply see the rotation of the wheel, you won't see the up down motion of the wheel because you are standing here, यहां पर खड़े हो आप, और ये जो चीज है ये रिजिडली व्हील से कनेक्टेड है। और यहां पर मास जो ऊपर नीचे हो रहा है, आप यहां पे खड़े होकर के अगर मास को ऑब्जर्व करो तो आपको मास का रिलेटिव मोशन दिखेगा। दैट मीन्स द मोशन ऑफ द मास रिलेटिव टू द व्हील will be applicable when the observer is standing on the wheel या फिर on the platform of the wheel. Absolute motion of the mass will be observed if the person observing the system is standing totally outside the system. तो उसको व्हील का अप डाउन मोशन भी दिखेगा और उसको मास का अप डाउन मोशन भी दिखेगा। रिलेटिव मोशन को एब्जॉर्ब करने वाला आदमी जो कि व्हील के प्लेटफॉर्म पे जाके बैठ गया है, उसको व्हील का अप डाउन मोशन दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो खुद व्हील के अप डाउन मोशन के साथ साथ अप डाउन मोशन कर रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव मोशन एंड एब्सोल्यूट मोशन ऑफ मास। किताबों में इसका इतना ज्यादा बखान नहीं किया जाता। पीपल डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन सो मच कि ये रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है, बस हेडिंग डाल देते हैं और सीधे डेरिवेशन चिपका देते हैं। तो स्टूडेंट्स को कई बार ये समझ में नहीं आता है कि भाई बोल क्या रहे। ठीक है, ज्यादा क्या दिमाग लगाना, वैसे ही रटना है, सब कुछ रट लो। तो वो एब्सोल्यूट मोशन का डेरिवेशन अलग से रट लेते हैं, रिलेटिव मोशन का डेरिवेशन अलग से रट लेते हैं। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि इनका मतलब क्या है। आगे जाकर के ये भी क्लियर हो जाएगा कि भाई इस तरीके से दो पर्सपेक्टिव से क्यों देखने की जरूरत है इसको। भाई सीधे सीधे एक बात बोल दो ना, एक ऑब्जर्वर है बाहर, वो देख रहा है, उसको पहिए का भी मोशन दिख रहा है और मास का भी मोशन दिख रहा है, बस बात खत्म। फिर ये रिलेटिव मोशन की बात क्यों की जा रही है, क्यों जरूरत है? ये जब अपन न्यूमेरिकल्स देखेंगे
जब अपन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको क्लियर होगा कि यस, रिलेटिव मोशन वाला जो इक्वेशन है वो भी काम आता है कई सिचुएशंस में. तो द बॉटम लाइन इज, you have to understand this derivation from two different perspectives. From the perspective of a person standing outside the system, that is absolute motion of mass, and from the perspective of a person sitting on the platform connected to the wheel, that is relative motion of the mass with respect to the support or wheel. तो दो पर्सपेक्टिव से देखेंगे. तो पहला अपना मैथमेटिक्स जो डेवलप कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डेवलप फॉर एब्सोल्यूट मोशन ऑफ मास. ठीक है, चलो एब्सोल्यूट मोशन ऑफ मास की बात करते हैं. लेट द सपोर्ट बी एक्साइटेड बाय अ हार्मोनिक मोशन y इक्वल टू y नॉट साइन ओमेगा टी. अब यहां पर एक और चीज सबसे पहले आपको ये समझनी पड़ेगी, इसका क्या मतलब है. मतलब अभी तो आपने कहा कि पहिया है और पहिया रोड पे चल रहा है, ठीक है. और अब मैंने एकदम से गणित कहां से स्टार्ट करी. आई एम सेइंग लेट द सपोर्ट, सपोर्ट क्या है, ये पहिया ही है सपोर्ट, दिस इज योर सपोर्ट. लेट द सपोर्ट बी एक्साइटेड बाय अ हार्मोनिक मोशन. तो आई एम रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग कि क्या आप में से कोई, कितना भी बचकाना लगे, कितना भी एब्सर्ड लगे कॉन्सेप्ट, आपके माइंड में क्या मतलब आता है इस चीज का कि मैं पहिए को हार्मोनिक मोशन कैसे दे सकता हूं. क्या रियल लाइफ में ऐसा कुछ किया जा सकता है, पहिए को Yes, sir. हार्मोनिक मोशन दिया जाए, क्या करना पड़ेगा मुझे. So speed breakers. वेरी गुड, दैट इज अ वेरी गुड इमेजिनेशन. स्पीड ब्रेकर्स, आप यहां तक पहुंच गए, यही काफी है. इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर दूंगा. जैसे देखो, अभी मैं बाकी क्लास को समझा दूं कि इन्होंने क्या आंसर दिया. स्पीड ब्रेकर्स आर लाइक दिस. ठीक है, अब जब पहिए इन स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से गुजरेंगे तो पहियों का जो सेंटर है वो ऐसे चलेगा, ये देखो. दे आर ऑलमोस्ट लाइक साइन कर्व्स. लेकिन अगर मैं एक परफेक्ट हार्मोनिक मोशन व्हील को देना चाहूं तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा. इंस्टेड ऑफ अ स्पीड ब्रेकर, आई विल गो फॉर द प्रोफाइल ऑफ अ रोड इन सच अ वे दैट इट इज कंप्लीटली साइनोसॉइडल. समझे आप. मैं ऐसी रोड बनाऊंगा जिसका प्रोफाइल एग्जैक्टली साइनोसॉइडल है, साइन कर्व को मैच करता है. अब इस रोड के ऊपर गाड़ी चलाऊंगा, तो यानी कि अब मेरा जो पहिया है वो इस रोड पे चल रहा है, मेरी गाड़ी पूरी, the entire spring mass suspension system is running over a road. The road itself is in the form of a sine curve. तो अब मेरा जो पहिया है, यानी कि मेरा जो सपोर्ट है, वो इस रोड के ऊपर चलेगा तो ये मजबूर हो जाएगा एक साइनोसॉइडल प्रोफाइल को फॉलो करने के लिए. तो एक तरह से मैंने अपने पहिए को साइनोसॉइडल मोशन दे दिया. This is the only way by which you can give a sinusoidal harmonic motion to the support. तो ये जो पहली लाइन है इसके पीछे इतनी सारी बातें छुपी हुई है. ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि इसके पीछे क्या गणित है. लेट द सपोर्ट बी एक्साइटेड बाय हार्मोनिक मोशन. और ये अपन को करना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड स्टडीज है. और ये बता दूं कि हो सकता है इस पूरी दुनिया में शायद ऐसी कोई रोड हो ही नहीं जो कि एग्जैक्टली साइनोसॉइडल प्रोफाइल पे बनाई गई हो. क्यों बनाएगा कोई रोड को ऐसे, ऐसे कोई रोड बनाता है क्या. साइनोसॉइडल वेव में कोई रोड क्यों बनाएगा. रोड बनाएगा तो लोग सीधे बनाने की कोशिश करते हैं. दे वांट टू एलिमिनेट अप्स एंड डाउन्स. बट व्हेन पिटफॉल्स कम, दे मे बी अ लिटिल बिट इन द फॉर्म ऑफ अ साइनोसॉइडल फॉर्मेट. थोड़ा बहुत हो सकता है. कभी स्पीड ब्रेकर आ जाए तो थोड़ा सा साइनोसॉइडल फॉर्मेट में मैचिंग हो सकती है. बट it's a very rare phenomenon, or rather it's really literally impossible for you to find a road which is constructed as a sinusoidal waveform. ऐसी रोड कोई नहीं बनाता है. But anyway, for the purpose of sticking to the syllabus, we are assuming this.
ठीक है, और आपके लिए यही आएगा, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आएगी तो आपको साइनोसॉइडल रोड बना के देंगे, ठीक है, सो यू डोंट वरी, आपको साइनोसॉइडल प्रोफाइल से बाहर नहीं ले जाएंगे। एनीवे, तो आपने कहा कि भाई पहिए को मैं ये मोशन दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये ओमेगा आपको पता है, ये वाई नॉट भी आपको पता है, जैसा मैंने पहले ही कह दिया, ये इनपुट्स हैं और इनपुट्स तो आपको पता ही है। ओके, नाउ वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ योर मास। अब देखो इसमें इन्होंने क्या कहा कि मेरी स्प्रिंग की फोर्स तो है के एक्स माइनस वाई और डैम्पर की फोर्स है सी एक्स डॉट माइनस वाई डॉट। ऐसा क्यों? अगर ये सपोर्ट चुप बैठी होती तब तो सिर्फ मास का मोशन होता, तो टोटल स्प्रिंग का जो कंप्रेशन है और टोटल डैम्पर का जो वेलोसिटी है वो सीधे सीधे मास की डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी से आ जाता। लेकिन तब क्या करें जब मास भी ऊपर नीचे हो रहा है और सपोर्ट भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस केस में मेरा स्प्रिंग किसी भी मोमेंट में कितना दब रहा है या कितना खींच रहा है, ये पता करने के लिए मेरे को सिर्फ एक्स या वाई की अकेली इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, मुझे ये पता करना पड़ेगा कि एक्स माइनस वाई कितना है। ये क्या चीज है? दिस इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। और उसी तरीके से डैम्पर पे एक्चुअल क्या वेलोसिटी पड़ रही है, ये पता करने के लिए ना तो अकेला वाई डॉट मेरे काम आएगा, ना अकेला एक्स डॉट मेरे काम आएगा, मेरे काम आएगा एक्स डॉट माइनस वाई डॉट, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। क्योंकि ये स्प्रिंग और डैम्पर मास और सपोर्ट के बीच में है, तो इसीलिए इनके ऊपर जो फोर्सेस आएंगी दे विल बी डिटरमाइंड नॉट बाय द एब्सोल्यूट मोशंस बट बाय द रिलेटिव मोशन। तो इस कारण से with all proper signs and with the consideration of bottom side being positive in this particular case, ये सारी चीजें अपन कई बार रिपीट कर चुके हैं, so I will not repeat it, I will simply suffice by stating that in this case when the mass and support both are moving, the spring force will be given by kx minus y and the damper force will be given by c x dot minus y dot। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई क्या? मेरे को एक बार आप कंफर्म करा दो। Yes, sir. सर डैम्पर का समझ में नहीं आया। हाँ बताओ, कौन सा वाला पार्ट नहीं समझ में आया? सर ये सी एक्स डॉट माइनस वाई डॉट करा अपन ने, ये चीज समझ में नहीं, एक बार फिर से बताना इसको। ओके, बिल्कुल बता देते हैं। पहले अपन स्प्रिंग का देख लेते हैं, ठीक है। इससे आपको बाकी चीज अपने आप ही समझ में आएगी। ये मास है, अभी मैं सिर्फ स्प्रिंग लगा रहा हूं, ये सपोर्ट है, ठीक है। अब स्प्रिंग की फोर्स मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर मैंने एक एंड को फिक्स कर रखा है और ये मेरा स्प्रिंग था, ठीक है, अभी मेरा स्प्रिंग खिंचा हुआ नहीं है, फिर मैंने कुछ फोर्स लगा करके इसको एक्स डिस्टेंस तक खींचा और स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी आप बताओ? के एक्स होगी, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि ये जो स्प्रिंग है, अब ये लेफ्ट वाला साइड जो है ये फिक्स्ड नहीं है, स्प्रिंग लगा दिया, अभी ये खिंचा हुआ नहीं है। मैंने कहा कि इस वाले को तो मैं एक्स डिस्टेंस से खींच रहा हूं, या फिर एक्स को छोड़ो, मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं इसको 10 मीटर खींच रहा हूं और उसी के साथ साथ इसको 5 मीटर आगे धक्का दे रहा हूं। स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब बताओ स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी? के इंटू 10 होगी या के इंटू 5 होगी? सर माइनस कर देंगे दोनों को, 10 माइनस 5 हो माइनस जाएगा। करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इस पे डिपेंड कर रही है कि स्प्रिंग कितनी दबी या खिंची, वो इस पे नहीं डिपेंड कर रही कि उसका कोई एक कोना आगे वाला या पीछे वाला कितना चला। उसको तो सिर्फ इससे मतलब है कि भैया मुझको कितना खींचा गया है। तो इसने बोला कि भाई तुम्हारे पीछे वाले हिस्से को तो 5 मीटर आगे कर दिया, तो स्प्रिंग ने बोला कि ठीक है अभी मैं 5 मीटर दबा हुआ हूं। फिर बोला कि अब उसके बाद मैंने आगे वाले पूंछ को पकड़ के 10 मीटर खींच लिया, तो बोला मैं 5 से दबा हुआ तो था ही, अब तुमने मेरे को 10 से खींच लिया,
तो 5 का खिंचाव 5 के दबाव को कैंसिल कर देगा और प्लस एडिशनल 5 का जो खिंचाव है, टोटल स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी K into 5, which actually came out as the relative displacement 10 minus 5 into K. ये कॉन्सेप्ट है इसका, और ये सेम चीज डैम्पर के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। अगर मैं एक एंड को डैम्पर के फिक्स कर दूं और बोलूं कि भाई ये जो फ्री एंड है इसको मैं वेलोसिटी दे रहा हूं 2 मीटर पर सेकेंड, तो मेरी डैम्पर फोर्स कितनी होगी? डैम्पिंग कोएफिशिएंट C है, 2C हो जाएगी, 2 into C, ठीक है। लेकिन अब उसी तरीके से अगर मैं इसको फिक्स ना करके अगर मैं इसको भी एक मोशन दे दूं, बोलो कि भाई तुम्हारा आगे वाला जो एंड है वो तो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और पीछे वाला एंड पीछे से आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड पे, तो अब बताओ डैम्पर के ऊपर फोर्स कैसे बनेगी? क्या ये 2 into C होगा या 2 minus 1 into C होगा? 2 minus 1 into C। अब क्लियर हो गया आपको कि ये रिलेटिव मोशन क्यों लेते हैं फोर्सेस को पता करने के लिए स्प्रिंग और यस डैम्पर पे, सर, ठीक यस है। सर। तो अब अपन ने जब ये समझ लिया भाई ये केसेस रिलेटिव मोशन का इसीलिए आया क्योंकि आपका मास भी मोशन में है, इट इज ऑल्सो मूविंग एंड योर सपोर्ट इज ऑल्सो मूविंग, बोथ ऑफ देम आर मूविंग एंड योर स्प्रिंग एंड डैम्पर आर ट्रैप्ड इन बिटवीन दीज टू मोशंस। तो इसीलिए रिलेटिव मोशन से ही इनकी फोर्स बनेगी और कोई चारा नहीं है आपके पास। तो अब आपने कहा कि भाई ठीक है फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, तो मेरी स्प्रिंग फोर्स हो गई के एक्स माइनस वाई और डैम्पिंग फोर्स हो गई सी एक्स डॉट माइनस वाई डॉट, एज्यूमिंग दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये एक एजम्पशन और करना पड़ेगा। देखो भाई अगर मैं इसको 2 मीटर दूं और इसको 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दूं तो स्प्रिंग फोर्स पीछे को होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दूं और इसको 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दूं तो मेरी स्प्रिंग फोर्स इधर को होगी। गॉट इट? तो ये डिपेंड भी करेगा कि डायरेक्शन ऑफ माय फोर्स विल डिपेंड ऑन विच वन इज ग्रेटर, आगे वाला बड़ा है कि पीछे वाला बड़ा है। तो उसी तरीके से आपने यहां पर क्या किया है, यहां पर बोला कि लेट द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास बी एक्स और यहां पर कहा लेट द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सपोर्ट बी वाई। तो अब ये स्प्रिंग फोर्स ऊपर को लगेगी या नीचे को लगेगी, उसी तरीके से डैम्पर फोर्स ऊपर को लगेगी या नीचे को लगेगी, वो इस पे निर्भर करेगा कि एक्स और वाई और एक्स डॉट और वाई डॉट में से बड़े और छोटे कौन से हैं। तो अपन ने ये एक एजम्पशन और लेना पड़ेगा कि अगर मैं स्प्रिंग फोर्स और डैम्पर फोर्स को ऊपर दिखा रहा हूं तो इसका मतलब आई एम एज्यूमिंग एक्स टू बी ग्रेटर देन वाई। बस इतना सा है, ये एजम्पशन करना है आपको, कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कोई ना कोई चीज तो किसी ना किसी चीज से बड़ी होगी होगी। अच्छा ये बताओ अगर एक्स और वाई दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा? न्यूट्रल। एक्स और वाई अगर बराबर हो जाएं और एक्स डॉट और वाई डॉट अगर बराबर हो जाएं तो स्प्रिंग फोर्स और डैम्पर फोर्स का क्या होगा? सर जीरो रहेगा। कॉम्बिनेशन वर्क करेगा वो फिर। तो वो जीरो हो जाएगी। There will be no spring force and damper force. They will act as if they are connected by a rigid support. तो इसलिए अपन वो केस तो ले ही नहीं रहे, अपन को रिलेटिव मोशन चाहिए, तो इसलिए या तो x को बड़ा मानना पड़ेगा या तो y को बड़ा मानना पड़ेगा। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, फॉर कन्वीनियंस वी आर एज्यूमिंग दैट लेट x बी ग्रेटर देन y एंड लेट x डॉट बी ग्रेटर देन y डॉट। तो अपनी स्प्रिंग फोर्स और डैम्पर फोर्स ऐसे बनेगी। एंड नाउ apply the Newton's second law, you will get this equation. Mass into acceleration is equal to net force acting on the system. और दोनों फोर्सेस के ऊपर मैंने माइनस साइन लगा दिया है। क्यों? क्योंकि my initial assumption was all vectors acting in the downward direction are taken as positive. तो इसीलिए जो अपवर्ड फोर्सेस बनी हैं वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो आई पुट अ नेगेटिव साइन हियर, ठीक है। अब यहां तक अपन आ गए, अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली है। इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन बोल रहे हैं भाई
एक्स डॉट तो आउटपुट है, इसका तो पता नहीं, ये पता करेंगे अपन, ठीक है। वाई डॉट तो पता कर सकता हूं मैं, ये कहां से आएगा, क्योंकि वाई मैंने एज्यूम कर लिया है ऑलरेडी। मैंने कहा कि y इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी का मैं साइनोसॉइडल मोशन अपने सपोर्ट को दे रहा हूं, तो y मुझे पता है, तो y पता है तो y डॉट भी पता हो जाएगा। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन वंस यू विल गेट y डॉट। तो मैंने कहा कि ओके फ्रॉम वन y डॉट इज इक्वल टू ओमेगा वाई नॉट कॉस ओमेगा टी। एक बार डिफरेंशिएट कर लिया इक्वेशन वन को, तो अब इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वी विल सब्स्टिट्यूट इट हियर यूजिंग 1 and 3 इन 2। 1 क्यों यूज कर रहे हैं, 1 में y की वैल्यू दिख रही है, तो ये मैं यहां पर यूज करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन y देता है और थर्ड इक्वेशन y डॉट देता है, इन दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट किया, आई गेट दिस, रीअरेंज किया। अब देखो यहां से थोड़ी सी मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, बट यू स्टे विथ मी, यू वोंट बी कंफ्यूज्ड। ये इक्वेशन अपने हाथ में आ गई y और y डॉट को सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ठीक है। इसमें से मैंने कैपिटल Y नॉट को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में राइट हैंड साइड में ये बचा है। अब देखो ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में क्या करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 यही है, ठीक है, बाय अंडर रूट ऑफ सी ओमेगा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बड़ा अजीब सा एक टर्म आ गया है और किताबों में ऐसे ही दे रखा है, इसके ऊपर ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, बस बोल रहे कर दो डिवाइड, हम कह रहे हैं ना कर दो और रट लो। तो अब अपन ने क्या किया, पहले एक बार देख लेते हैं करने से क्या होता है, फिर समझते हैं कि ये उटपटांग चीज लेके क्यों आए। एनीवे करना क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो अगर मैं एक ही चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करूं तो पूरी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, ऊपर न्यूमरेटर में इससे मल्टीप्लाई किया और नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, ये देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, डिवीजन हो गया। अब देखते हैं ये क्या चीज है। अपनी जो इक्वेशन आई थी यहां पर ये देखो, सी ओमेगा वाई नॉट कॉस ओमेगा टी, के वाई नॉट साइन ओमेगा टी, ये दोनों क्या चीज है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ स्प्रिंग फोर्स एंड डैम्पर फोर्स। ठीक है, मतलब ये आपको ये बताती है कि अगर मेरे पास सिस्टम को चालू किए हुए 2 सेकंड हो गया तो टी की वैल्यू 2 रखूं, तो डैम्पर पे उस टाइम पे क्या फोर्स चल रही होगी वो ये टर्म बताएगी। और टी इक्वल टू 2 सेकेंड रखूं तो स्प्रिंग पे कितनी फोर्स लग रही होगी वो ये टर्म बताएगी, के वाई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, बेसिकली देख लो ये वाई नॉट कॉस ओमेगा टी, वाई नॉट साइन ओमेगा टी क्या चीज है, ये बेसिकली वाई है। ठीक है, अब अगर ये डैम्पर फोर्स है और ये स्प्रिंग फोर्स है, तो एक काम और करते हैं, अपन ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में फेस एंगल कितना है। तो ये पता किया, वाई नॉट सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी जो डैम्पर फोर्स थी उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वाई नॉट सी ओमेगा और कॉस ओमेगा टी लिखने की बजाय साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकता हूं। ठीक है, ये तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से पता ही है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, स्प्रिंग फोर्स है आपकी के साइन ओमेगा टी, यहाँ पर के वाई नॉट साइन ओमेगा टी आना चाहिए, देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम हियर, ये के वाई नॉट साइन ओमेगा टी है, के वाई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो के वाई नॉट साइन ओमेगा टी मेरा इंस्टेंटेनियस स्प्रिंग फोर्स है और वाई नॉट सी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 मेरा इंस्टेंटेनियस डैम्पिंग फोर्स है। वाई नॉट सी ओमेगा डैम्पिंग फोर्स का एम्पलीट्यूड है और के वाई नॉट स्प्रिंग फोर्स का एम्पलीट्यूड है। उसके अलावा जो बचता है वो है साइन ओमेगा और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2।
तो क्या मैं इन दोनों को देखते हुए ये कह सकता हूं कि मेरी डैम्पिंग फोर्स जो है वो हमेशा मेरी स्प्रिंग फोर्स से π/2 फेस एंगल से आगे चल रही है? कैन आई से दिस और नॉट? यस सर। सीधी बात है, पक्की हो गई। और ये हर टाइम वैलिड है, ऑल द टाइम, whenever you put any value for time, यहां पर 1 सेकेंड डालो, 2 सेकेंड डालो, 1000 सेकेंड डालो, 5000 सेकेंड डालो, कितना भी टाइम की वैल्यू डालो, हमेशा टेम्पर फोर्स एग्जैक्टली π/2 से आपको लीड करती हुई मिलेगी स्प्रिंग फोर्स से। तो अब अगर ऐसा है तो मैंने यहां पर क्या किया, के वाई नॉट को यहां पर बना लिया एक रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है, अब देखो एक रोटेटिंग फोर्स वेक्टर के तौर पे इसको कंसिडर करो आप, जैसा अपन ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में किया था। ठीक है, तो ओमेगा टी पे अगर के वाई नॉट यहां चल रहा है तो सी ओमेगा वाई नॉट मेरे को कहां मिलेगा, एग्जैक्टली उससे 90 डिग्री आगे मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं कभी भी अगर सी ओमेगा वाई नॉट और के वाई नॉट के वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, दे विल ऑलवेज फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस, मेकिंग सम इंस्टेंटेनियस एंगल अल्फा। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अगर सी ओमेगा वाई नॉट और के वाई नॉट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों का जो ये हाइपोटेन्यूज है, ये वाला, ये कितना होगा? कोई जरा बता सकता है मेरे को? टेल मी द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज दिस। ये सी ओमेगा वाई नॉट है, ये के वाई नॉट है, ये हमेशा एक दूसरे पे 90 डिग्री से आगे पीछे है, लेकिन मैं अब ये जानना चाहता हूं कि इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा। रूट सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टी होल स्क्वायर। क्या ये वाई नॉट मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर नहीं होगा? यस। ये टर्म यहां से आती है। ये पूरी कहानी जिसमें कि इन्होंने एकदम से आपको सरप्राइज किया डेरिवेशन करने वालों ने, कि आप अपने राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4 को सी ओमेगा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें ये वाई नॉट था साथ में, तब ये स्प्रिंग फोर्स और डैम्पर फोर्स बनती थी। लेकिन अगर मैं वाई नॉट को गायब कर दूं, जैसा कि मैं कह रहा हूं सी ओमेगा वाई नॉट मेरी डैम्पर फोर्स का एम्पलीट्यूड है और के वाई नॉट मेरी स्प्रिंग फोर्स का एम्पलीट्यूड है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये अगर मैं वाई नॉट हटा दूं तो मेरे पास बचेगा सी ओमेगा और के, ये क्या चीज है? तो क्या मैं ये नहीं कह सकता सी ओमेगा इज डैम्पर फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि बेसिकली मैंने क्या किया है, सी ओमेगा वाई नॉट जो था ये डैम्पर फोर्स था, इसको वाई नॉट से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो गया, वाई नॉट और वाई नॉट कैंसिल हो गए, तो सी ओमेगा क्या रहा? सी ओमेगा इज डैम्पर फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। और उसी तरीके से के वाई नॉट जो था ये मेरा स्प्रिंग फोर्स था, और अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दूं तो ये स्प्रिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो गई। क्या वाई नॉट कैंसिल हो गए? सो सिंपली के is my spring force per unit displacement and simply C omega is my damper force per unit displacement. तो इन चीजों के चलते अब मैं कभी भी C ओमेगा और K को अकेला देखूं तो मेरे को उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है, आई एम कंफर्टेबल विद दैट। आई कैन से कि मैंने अंडर रूट किसका किया है, मैंने डैम्पर फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट का और स्प्रिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट ले लिया है। तो अगर डैम्पर फोर्स और स्प्रिंग फोर्स एक दूसरे पे 90 डिग्री डालते हैं तो डैम्पर फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट भी 90 डिग्री ही मेंटेन करेंगे, और उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ सी ओमेगा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो बेसिकली दिस इज जस्ट रिजल्टेंट ऑफ योर डैम्पर फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो इस चीज से अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये एक मिस्ट्री है कि चलो हमें ये तो समझ में आ गया
कि ये अंडर रूट के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर आया कहां से, लेकिन ये अभी भी नहीं समझ में आया कि आप इसको डिवाइड कर क्यों रहे हो। बट लेट अस सी, इक्वेशन नंबर 4 अपन को ये सारी रिलेटिव मोशन वगैरह लगा करके मिली थी, ये सब अपन ने समझ लिया। फिर उसके बाद ये भी समझ लिया कि भाई जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, ये भी समझ लिया। अब ये समझते हैं कि क्यों कर रहे हो डिवाइड और मल्टीप्लाई। लेट अस सी, सी ओमेगा अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस मिला और के अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस मिला। एक और बार अपन अपने फोर्स ट्रायंगल पे जाकर के देखते हैं। अब मेरे को इसमें से देख करके बताओ कि सी ओमेगा, अच्छा ये क्या चीज है, ये आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज के स्क्वायर दिस हाइपोटेन्यूज। अब इस फिगर में देख करके मेरे को जल्दी से बताओ ये क्या चीज है, सी ओमेगा अपॉन दिस साइन ऑफ अल्फा। साइन अल्फा, और के अपॉन दिस क्या है, कोस अल्फा। ये है अपना के वाई नॉट, ये हो गया कॉस अल्फा। ठीक है, तो अपना पर्पस ही ये था। देखो इस चीज को अब मैं लिख दूंगा साइन अल्फा और इस चीज को लिख दूंगा कॉस अल्फा। ये पूरी ट्रिक इसी चीज के पीछे आधारित थी कि अपन किसी भी तरीके से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्मूले पे ले आए इसको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बन रहा है ना साइन अल्फा कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस अल्फा साइन ओमेगा टी। इस काम के लिए कर रहे थे ये पूरी की पूरी जद्दोजहद। बट एनीवे वंस यू हैव ऑब्टेन्ड दिस फॉर्म, और अब अल्फा कोई अनजान चीज नहीं है आपके लिए। अल्फा इज नॉट अननोन। अल्फा क्या है, इस ट्राइंगल को देख करके जल्दी से बताओ अल्फा की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं। tan इनवर्स ऑफ सी ओमेगा अपॉन के। वेरी गुड। Alpha is known to me, it is not an unknown quantity, and it is tan inverse of C omega upon K. तो आपका सिस्टम है, डैम्पर आपने लगाया है, गाड़ी को आप चला रहे हो, कितनी ओमेगा है उसकी वो भी आपको पता है, आप ही की गाड़ी का सस्पेंशन है तो उसकी के जो वैल्यू है ये भी आपको पता है। सो ऑल दीज वैल्यूज आर ऑलरेडी नोन फॉर द सिस्टम। You just put these values here, take the tan inverse and you will get the value of alpha. So this is a known quantity, not an unknown quantity. ठीक है, तो अल्फा आपको पता है, ओमेगा आपको पता है, सब चीजें पता है अब आपको यहाँ पर। ठीक है, anyway, making all these replacements, now you know what we are doing, how we are doing and why we are doing. ठीक है, ये सारी चीजें पता है, ये सारी रिप्लेसमेंट आपने कर दी। RHS of 4 becomes like this. फिर इसको आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से श्रिंक किया, दिस बिकम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, एंड इवेंचुअली द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ योर मोशन बिकम्स लाइक दिस। दिस बिकम्स योर इक्वेशन ऑफ मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। और अब जाकर के अच्छा, एंड वेयर अल्फा इज टैन इनवर्स ऑफ सी ओमेगा बाई के, ये भी अपन को पता है। अब यहां पर आकर के अपन इस सिचुएशन में है कि अब अपन डेरिवेशन को रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब अपन ने एकदम से फटाक से बोला कि यार ये तो पहचानी हुई फॉर्मेट आ गई। कैसे आ गई? इक्वेशन नंबर 5, दिस वन is similar to the format of general forced vibration of harmonic excitation. जो जनरल फोर्स्ड वाइब्रेशन आपने स्टार्ट की थी तो आपने क्या इक्वेशन डिराइव की थी? ये वाली की थी, जिसमें आपकी जनरल फोर्सिंग फंक्शन एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस चीज को और इस चीज को कंपेयर करो, एम एक्स डबल डॉट सी एक्स डॉट प्लस के एक्स, एम एक्स डबल डॉट सी एक्स डॉट प्लस के एक्स सेम है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे चलें, समथिंग 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 क्वांटिटी एफ नॉट साइन साइन omega t plus alpha, where alpha is a constant, so alpha is going to act as a phase angle. Don't worry about it, phase angle से कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। phase angle क्या चीज है? बस यही तो बताता है ना कि कोई साइनोसॉइडल वेव
कितना आगे चल रही है या कितना पीछे चल रही है, बस इतना ही तो बताता है। तो कहीं पर भी फेस एंगल के आने से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर ओरिजिनल हार्मोनिक एक्साइटेशन की इक्वेशन में सिर्फ ओमेगा टी था, और हमारे सपोर्ट के एक्साइटेशन वाले एक्सप्रेशन में ओमेगा टी प्लस अल्फा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं फॉर ऑल पर्पसेस आई कैन सिंपली से एंड स्टेट दैट दिस इक्वेशन is 100% मैचिंग विद दैट ऑफ हार्मोनिक एक्साइटेशन। लेफ्ट हैंड साइड भी मैच कर रहा है, राइट हैंड साइड भी मैच कर रहा है, और सबसे जरूरी बात, मेरा एफ नॉट जो है अब इस केस में बन गया वाई नॉट ऑफ अंडर रूट के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। दिस इज माई एफ नॉट। साइन आ गया, साइनोसॉइडल फंक्शन है, ओमेगा टी है, बस इतना सा फर्क है कि ये अल्फा फेज से आगे चलता ही, चलने तो आगे चले पीछे चले कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा अपन को पता है। ठीक है। अच्छा, इस कंपैरिजन से क्या फायदा है? इस कंपैरिजन से ये फायदा है कि हार्मोनिक एक्साइटेशन से निकलने वाले सारे रिजल्ट मुझे पहले से रटे हुए हैं। तो फिर अब इस वाली इक्वेशन का आगे क्या करना है ये हमें पता करने की जरूरत ही नहीं है। जो हार्मोनिक एक्साइटेशन के लिए आपने क्या किया था, मैग्निफिकेशन फैक्टर निकाला था, वाई नॉट निकाला था, जो कुछ भी निकाला था, वो सारी चीजें इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर दो। सो नाउ इन दिस केस एक्साइटेशन ऑफ सपोर्ट वी हैव एफ नॉट इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। कैसे मिला? बाय कंपैरिजन। आपने सारी चीजों को कंपेयर किया तो आपने ये पाया कि साइन की शुरुआत से पहले जो कांस्टेंट बैठा है वो एफ नॉट होना चाहिए, तो ये पूरी चीज एफ नॉट हो गई आपकी। सो फॉर एक्साइटेशन ऑफ सपोर्ट दिस क्वांटिटी इज योर एफ नॉट। ठीक है। और सिमिलरली जैसे अपन ने प्रीवियसली एस्टैब्लिश किए थे रिजल्ट, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन लिया था फोर्स्ड वाइब्रेशन के लिए, तो आपने एक फेस एंगल से माइनस किया था डिस्प्लेसमेंट को। आपने कहा था कि अगर फोर्सिंग फंक्शन एफ नॉट साइन ओमेगा टी है तो उसके कारण जो मोशन का जो रिजल्ट होगा वो फाई फेस एंगल से पीछे चलेगा। वो इस केस में भी चलेगा, लेकिन अब की बार आपका जो मोशन है उसमें ओमेगा टी प्लस अल्फा तो पहले से ही लगा हुआ है, अब इसमें से एक फाई माइनस और करना पड़ेगा। जनरल फोर्सिंग फंक्शन कहता है कि आपका जो भी एंगल चल रहा है उससे फाई माइनस करो। तो सपोर्ट वाले एक्सप्रेशन में अपना जो एंगल चल रहा है वो ओमेगा टी नहीं है, वो ओमेगा टी प्लस अल्फा है। तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी एंगल चल रहा है उसमें से फाई माइनस कर देंगे हम। सो आवर जनरल सोल्यूशन विल बी एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस फाइव। ठीक है। और उसके बाद द सेम थिंग गोज फॉर स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड एक्स नॉट ऑफ मास। एक्स नॉट क्या चीज है? एक्स नॉट मास का एम्पलीट्यूड है। और वाई नॉट क्या चीज है? वाई नॉट आपके सपोर्ट का एम्पलीट्यूड है। एक्स और वाई वेरिएबल अपन ने याद होगा स्टार्टिंग में रखे थे, वाई वॉज फॉर सपोर्ट, एक्स वॉज फॉर मास। तो आप अगर मैग्निफिकेशन फैक्टर बनाना चाहें इससे तो वही सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, एक्स नॉट अपॉन एक्स एस टी जो है दैट विल बी द सेम थिंग। ये देखिए 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर, वेयर आर इज ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। बट व्हाट इज एक्स एस टी? एक्स एस टी होना चाहिए आपका बाय डेफिनेशन एफ नॉट अपॉन के, और एफ नॉट आपका क्या है? वाई नॉट अंडर रूट के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर है। तो इसको के से डिवाइड किया और इसका वापस से मैंने एक रीअरेंजमेंट किया है यहां पर इस टर्म का। ये रीअरेंजमेंट आप लोग देखें, दिस शुड इवेंचुअली रिजल्ट इन दिस क्वांटिटी। जो y नॉट इंटू ये जो क्वांटिटी थी, इस क्वांटिटी का पूरा मैंने कन्वर्जन करके, ये आप लोग खुद देखेंगे कैसे किया है, आई हैव कन्वर्टेड इनटू दिस क्वांटिटी। ये पहले यहाँ y नॉट के साथ में था, फिर मैंने एक रीअरेंजमेंट किया है, इस टर्म को उठा करके यहाँ न्यूमरेटर में रख दिया और यहाँ पर सिर्फ रह गए x नॉट अपॉन y नॉट। ठीक है। एंड नाउ दिस इज द इक्वेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर सपोर्ट मोशन, फोर्स्ड एक्साइटेशन ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ सपोर्ट। तो ये बेसिकली इक्वेशन क्या बोल रहा है आपसे? ये बोल रहा है कि अगर
मैं सपोर्ट को y एक्साइटेशन दूं, यानी कि y नॉट साइन ओमेगा टी का एक्साइटेशन दूं, तो इसके ऊपर बैठे हुए मास पे कितना एम्पलीट्यूड नजर आएगा। यानी कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं इस सपोर्ट को y नॉट साइन ओमेगा टी से शेक कर रहा हूं, तो जो मास का जो रिजल्टेंट है, यानी कि जो आउटपुट है, ये मैक्सिमम कितना ऊपर नीचे हो रहा है x नॉट। तो अगर मैं मैक्सिमम सपोर्ट को y नॉट से ऊपर नीचे कर रहा हूं तो मास मैक्सिमम कितना होगा। दिस इज व्हाट दिस इक्वेशन इज आंसरिंग, कि y नॉट का इनपुट एक्साइटेशन अगर सपोर्ट को दिया जाए तो मास का कितना एम्पलीट्यूड ऑफ एक्साइटेशन मुझे नजर आएगा। इनपुट आउटपुट, दिस इज द एक्सप्रेशन, and this equation is called as the equation of motion transmissibility। क्योंकि आप इस कहानी को जो मैं आप वर्बली बोल रहा हूं इसको सुनकर ही आप समझ जाएंगे मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी इसको क्यों कहा जा रहा है, कि सपोर्ट को मैं y नॉट का मोशन दे रहा हूं तो मास पे कितना मोशन मिलेगा। यानी कि y नॉट का मोशन जब सपोर्ट को दिया तो इन चीजों के थ्रू ट्रांसमिट होता हुआ मास पे कितना मोशन पहुंच रहा है। सपोर्ट को मैं मोशन दे रहा हूं, मास पे कितना मोशन पहुंच रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस इक्वेशन x नॉट अपॉन y नॉट is called as the equation of motion transmissibility। कितना मोशन सपोर्ट से मास पे ट्रांसमिट हुआ, ठीक है। एंड द इक्वेशन फॉर फायर रिमेन्स द सेम, क्योंकि आपका वही सेम फोर्स्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन निकल के आया था, तो फाई का इक्वेशन चेंज नहीं होगा, इट विल बी द सेम। और एंगल ऑफ लैग अब की बार फाई माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और ये फाई माइनस अल्फा क्या चीज है, एंगल ऑफ लैग। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर मैं y से सपोर्ट को शेक कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि मास भी शेक होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मोशन ऑफ सपोर्ट और मोशन ऑफ मास के बीच में जो फेस एंगल है वो कितना है। द एंगल ऑफ लैग बिटवीन द मोशन ऑफ मास एंड द मोशन ऑफ सपोर्ट इज फाई माइनस अल्फा, एंड दैट इज गिवन बाय, क्योंकि आपको फाई की इंडिविजुअल इक्वेशन भी पता है, अल्फा की भी पता है, तो सीधे सीधे इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आपका एंगल ऑफ लैग फॉर मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन रिलेटिव मोशन ऑफ मास स्टार्ट करेंगे, और जितने भी बॉक्स्ड अप इक्वेशंस हैं इनको आप लोग अलग से तैयार करके रखना स्टार्ट कर दीजिए। जब अपन इनकी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपको समझाए गए थे उन सबको और अच्छी तरह से कंसोलिडेट कर दिया जाएगा। सो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अभी ये डेरिवेशन करके ये सारी चीजें जो हवा हवा में बातें अपन ने बनाई है, इससे मेरे को खुद को पता है कि आपको 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती, बट I have tried to explain as much as possible. The rest of the understanding will automatically dawn upon you when we start solving numerical examples. So please stay with me. I will take your attendance now.